Students. Today we will discuss about the routine care of the newborn and about Apgar score. In previous classes, we have discussed about various physiologies of newborn as well as the problems encountered by newborn just after birth, like birth asphyxia, and its management by resuscitation or TABC of resuscitation algorithm. Today we will discuss about the routine care of the newborn, what we do routinely if newborn is healthy or we do not require resuscitative care for a newborn. Today we will discuss about it. First and foremost, Apgar score. The Apgar score was designed or developed by Dr. Virginia Apgar, who was an American anesthesiologist in 1952 for the assessment of newborns. Basically, Dr. Virginia Apgar was obstetric anesthesiologist, and for the assessment of newborns, is newborn having some problem or she is healthy or not? She have developed a scoring method, and that scoring method was or is designated behind her Apgar, the surname, her surname, and the acronym to score is also derived from Apgar. In next slide, we will talk about that. Uh, 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 Basically, Apgar score rates 5 vital areas of the newborn, and it is basically done after 1 minute and after 5 minutes of the birth, and if required, if the subsequent Apgar score at 5 minutes is not more than 7, then we subsequently do this Apgar score for every 5 minutes until it is achieved or it is more than 7. तो अपगार स्कोर बेसिकली हम 5 मेन एरियाज के लिए करते हैं, और इसका स्कोर जो है 5 एरियाज में मैक्सिमम जो है 2 करके 10 हो सकता है, और 0 से 10 इसकी रेंज रहती है. अगर ये 7 से ज़्यादा है 1 मिनट या 5 मिनट पे भी, तो देन वी डू नॉट हैव टू डू इट फर्दर. बट अगर ये 7 से कम है तो हर 5 मिनट में जो है अपगार स्कोर यूजली रिपीट किया जाता है. बट नाउ डेज इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर द resuscitation, initiation of resuscitation. We do not take decision based on अपगार score, because अपगार स्कोर इज बेसिकली डन आफ्टर फर्स्ट मिनट, और हम तो बात ही करते हैं कि फर्स्ट गोल्डन मिनट, पहला 1 मिनट हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, और फर्स्ट 1 मिनट में अगर रिससिटेशन की जरूरत होती है तो we usually do the initial steps of the resuscitation up to the positive pressure ventilation within first minute. So Apgar score is not the method used for mm, initiation of resuscitation, but may be helpful in assessing prognosis of the asphyxiated neonate. If Apgar score is less than 7 or less than 5 or less than 3 at 10 minutes, it indicate that baby will have some neurological problem in long run if baby is saved. The Apgar score, today the value of Apgar score is only to assess prognosis. Otherwise, for resuscitation, we do not use Apgar score. What types of assessment are done in Apgar score or how it is scored? तो basically 5 areas में जो Apgar score किया जाता है. First and foremost is E for appearance. Appearance skin color से ली जाती है, और skin color में if skin color total cyanosis है, all over cyanosed है या pale है, then the point given is 0. And if only peripheral cyanosis है, central cyanosis नहीं है, then it is given 1, which is also a drawback of this Apgar, क्योंकि every newborn is born with peripheral cyanosis. जैसे उसको ठंड लगती है बाहर आके, तो peripheral cyanosis होता ही है बच्चा. And when the baby is totally pink, then it is 2. Second, P for pulse rate or heart rate. Heart rate if 0, then it is 0 point. If heart rate is less than 100 per minute, then it is 1 point, and if it is more than 100, then score is 2. G in Apgar is for Grimace. Grimace, what is Grimace? It is reflex irritability or reflex activity. We usually insert a catheter into the
nostril of the newborn and see the response or reflex irritability of the newborn. And if there is no response, then score is 0. If there is facial grimacing, मुंह बनाता है बच्चा जैसे हम कैथेटर डालता है और वीकली जो है क्राई करता है, देन इट इज 1. और इफ स्नीज करता है, क्राई करता है या विड्रॉ करता है, देन इट इज 2. देन E for activity, APGAR, अपगार is A for activity. Activity means tone. If baby is floppy totally in extension position है, कोई tone नहीं है, then it is 0. There is some flexion, then it is 1. And if the extremities are bell flexed and rigid extension, then it is 2 score. And last R is for respiration, and respiration, if baby is not breathing, then 0. If breathing baby but irregular breathe है, slow है, gasping है, then it is 1. And if baby is breathing regularly or strong cry, then it is 2 points. Thus we can have, if scored in each category 2 points, we can have a maximum score of 10 and minimum score of 0. If the score comes out to be 7 to 10, it is indicative of that baby is in normal condition, while if 4 to 6 indicates moderate type of asphyxia, and if up to 3, then it indicates severe asphyxia. But based on these scores, we do not initiate, or we do not decide the step of resuscitation. Usually previously it was designed for initiation of resuscitation, but nowadays we have a resuscitation algorithm which we follow for the resuscitation of the newborn. Usually this is only for prognostic values. So this was all about APGAR score. Now we will discuss about the routine care of the newborn at birth. Basically, what are the basic needs of the newborns? Usually newborns have 4 basic needs. These 4 basic needs, what they are: first and foremost, they have to transition from placenta to pulmonary respiration transition चाहिए. They have to breathe normally, and they are required to be protected against various environmental injuries. It can be infectious, it can be some other injuries. They require protection. A human baby require protection. Then to be warm, they should be kept warm to prevent hypothermia. And last but not the least, the most important is they need to be fed. For energy or growth, they need to be fed. So these are basically 4 needs of newborns, and all the routine cares will be targeted to provide all these basic needs of these newborns. So essential intervention to provide care of these 4 basic needs are, first and foremost is we should do a clean delivery, clean childbirth, and clean cord care to prevent newborn infections. Then thermal protection to prevent hypo or hyperthermia. Exclusive breastfeeding, and breastfeeding should be started within first 1 hour. And breathing, initiation of breathing, we have discussed it earlier, that is resuscitation. तो इन 3 चीज़ों की हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. फर्स्ट जो चीज़ें की जाती हैं, कैसे बर्थ होता है और बर्थ के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, तो उनकी बात कर लें रूटीन केयर में. कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे बर्थ होती है तो वी लुक फॉर टाइम, कि किस टाइम बर्थ हुई है. टाइम नोट करना इज इम्पॉर्टेंट थिंग. तो कॉल आउट टाइम ऑफ द बर्थ. देन if baby is term, is crying, and having good muscle tone, then we can place the baby on mother's abdomen. We are talking about routine care of the newborn. जो हमने उसमें बात करी थी, routine care करनी है तो mother's abdomen पे करेंगे. We will dry baby with the warm clean sheet, but before drying we should wipe out mouth and nose with clean cloth, or with the mucus extractor or suction catheter, if whichever is available. If required, we should clean airways. Then we should dry the baby with clean warm linen sheet. And then assess breathing while drying. जब ड्राई कर रहे हैं तो हम ब्रीदिंग फिर असेस कर सकते हैं कि बेबी ब्रीथ कर रहा है, ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है. एंड इफ बेबी इज ब्रीदिंग नॉर्मली, देन
there is no need to do further steps. We have to clamp the cord, then starts cord care. तो clamp the cord हमने पहले बात करी थी कि we should take clue from the nature कि जब pulsation cord में बंद हो जाए, then only we should clamp the cord and cut the cord, and it usually is 1 to 3 minutes. कुछ कंडीशन में हमको इमीडिएटली काटना होता है, दैट इज नॉट द रूटीन। जैसे RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है, एस्फिक्सिएटेड बेबी है, कॉर्ड अराउंड नेक है, तो वहाँ पे हमको जो है इमीडिएटली कट करके रिससिटेशन करना है। बट इफ वी आर प्रोवाइडिंग ओनली रूटीन केयर, बेबी डज नॉट रिक्वायर एनी रिससिटेटिव केयर, वी कैन वेट फॉर 1 to 3 minutes, and then we should clamp the cord with a sterile tie, and then cut it. And last thing, to shift the baby to labor ward or perinatal ward, we have to put identity level on the baby so that baby are not being exchanged wherever there is more than one delivery at the same time. Then further routine cares requires before shifting the baby. We have to identify any birth injury or congenital malformation which may require immediate मैनेजमेंट। तो एग्जामिनेशन के अगले लेक्चर में ये सारी चीज़ें बात करेंगे कि क्या एग्जामिन करना है अपने को। देन वी हैव टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे हमने मदर के साथ रूम इन किया है उसको पेरिनेटल वार्ड में, तो वहाँ पे जो हमने वी हैव टू स्टार्ट 1 hour लिखा है, बट विद इन हाफ एन आवर we have to start breastfeeding as early as possible. Whenever baby and mother is ready to for this ritual of breastfeeding, we should start it. It may be 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes after delivery. Then we have to record the baby's weight. Usually before shifting the baby into the perinatal ward, we usually record weight of the baby. We have to give the injection of vitamin K. Previously it was only for preterms or baby born less than 2000 grams. Nowadays usually all the babies are given injection vitamin K, and in term babies the dose of vitamin K is 1 milligram IM, while in preterms it is 0.5 milligram for. And then another thing is to maintain the temperature of the baby by covering head and providing clothes or clothing, proper clothing of the baby is essential. तो एक एक करके इन सभी पॉइंट्स की हम बात करेंगे कि क्या क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो कॉर्ड केयर की बात करें तो कॉर्ड केयर में हमने पहले ही बार बार बात करी है कि clamp and cut cord with a sterile instrument. We have to maintain asepsis. सबसे ज़्यादा जो है टेटनस के चांसेस यहीं पे हो गए अगर हमने जो है स्टेराइल मटेरियल यूज़ नहीं किया है कॉर्ड टाई करने के लिए। जैसे ऐड भी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस जो माध्यम हैं कि साफ धागे से बांधें और स्वच्छ जो ब्लेड से, नई ब्लेड से, साफ ब्लेड से काटें। तो वो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। देन कॉर्ड टाई करना यूजली 2 to 3 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर इवन जो है हम उसको बेस से टाई कर सकते हैं। बेस से 4 सेंटीमीटर दूर टाई करके रिमेनिंग कॉर्ड को कट करना है। हमने यहाँ कॉर्ड क्लैंप लगा दिया और उसके बाद उसके दूसरी साइड पे हमने कट कर दिया। मेन ध्यान क्या देना है कि टाई सही से बंधा है, यूजिंग ऑफ ब्लड तो नहीं हो रहा है, और दूसरा जो है ओपन केयर ऑफ कॉर्ड करनी है। कॉर्ड शुड नॉट बी बैंडेज्ड, बैंडेज अप्लाई नहीं करना है और कोई भी चीज़ जो कॉर्ड पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे काउ डंग या कुछ भी मिट्टी लगाना है, इस तरीके के कोई भी जो है मैन्यूवर नहीं करना है। नाइदर जो है कोई हल्दी या इस तरीके की चीज़ें ना लगाएं तो बेहतर है, बिकॉज दे कैन बी सोर्स ऑफ वेरियस इन्फेक्शंस। बैक्टीरिया वगैरह अगर जो है वो स्टेराइल नहीं है तो वो बैक्टीरिया प्रोवाइड करा सकती हैं, जिससे कि सेप्सिस हो सकता है, टेटनस हो सकता है। तो इसलिए जो है कॉर्ड को कुछ लगाना नहीं और अनकवर्ड छोड़ना है, बैंडेज उस पर अप्लाई नहीं करना है। देन कॉर्ड केयर के अलावा सेकंड जो चीज़ आती है, अब कॉर्ड केयर कर लिया हमने, अब हमको दो चीज़ों पे मेन ध्यान रखना है, एक तो उसकी फीडिंग पे और दूसरा उसके टेम्परेचर कंट्रोल पे। यूजुअली जो है सर्दियों में
हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड देयर आर बेसिक 4 मेथड्स बाय विच अ न्यूबॉर्न कैन लूज टेम्परेचर। न्यूबॉर्न्स आर नॉट एनेबल्ड, और उनके पास जो है थर्मोस्टेट उतना अच्छा नहीं होता जितना एडल्ट्स के पास होता है। उनका हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर रेगुलेशन का सिस्टम है उतना मैच्योर नहीं होता है। एंड दे हैव कंपेरेटिवली लार्जर बॉडी सरफेस एरिया फ्रॉम वेयर दे कैन लूज हीट वेरी इजीली और वेरी क्विकली। तो बेसिकली 4 चीज़ें हैं हीट लूज करने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इवेपोरेशन। वो एक गीले एनवायरनमेंट से, पानी वाले एनवायरनमेंट से आए हैं, तो जितना भी पानी उनके शरीर पे है वो इवेपोरेट करेगा, तो इवेपोरेशन के साथ हीट लूज होगी। तो इवेपोरेशन को प्रिवेंट करना है बाय ड्राइंग। देन कन्वेक्शन, एयर करंट चल रहा है, हवा पास हो रही है, तो दैट कैन आल्सो टेक आउट द हीट. Then there may be radiation from the body, and if the surface on which the baby is lying is cold, then there may be conduction into that particular surface. तो 4 मेथड हैं जिनके थ्रू baby can lose heat. And in 4 methods of heat loss को कैसे चेक करना है, जैसे evaporation है बट बेबी के कारण हो रहा है, तो immediately after birth we have to dry the baby, and जो है बेबी को क्लोथ करना है। तो ड्राइंग जरूरी है इवेपोरेटिव लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए। देन कंडक्शन के लिए वही है कि मदर के एब्डोमेन पे रख लें, या फिर वार्म सरफेस, प्री वार्म लिनन या रेडिएंट वार्मर के नीचे हम रखें, जहाँ पे हमने प्री वार्म जो है लिनन डाल रखी हैं। तो वार्म वेलकम की बात हमने पहले भी की, वार्म वेलकम होना चाहिए, तो कंडक्टिव लॉसेस तभी हम जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। देन कन्वेक्टिव लॉसेस, यूजुअली कोल्ड रॉड, जो ठंडी हवा जो चल रही है, तो जो लेबर रूम का एनवायरनमेंट है शुड बी फेवरेबल टू बेबी, नॉट टू द मदर और टू द डॉक्टर्स। तो टेम्परेचर जो 25 प्लस होना चाहिए, और वहाँ पे कोई भी एयर करंट पास ना हो रही हो, तो एक वार्म माइक्रो एनवायरनमेंट बेबी के लिए क्रिएट करना होता है। रेडिएशन के लिए जो है वही है कि हम जो है चारों तरफ रूम को वार्म रखेंगे, तो उस रेडिएटिव लॉस मिनिमाइज हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। और टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए जो बेस्ट मेथड है, इट इज़ कंगारू मदर केयर। कि हम जो है, जैसे कंगारू के पेट के आगे एक थैली बनी होती है जिसमें कंगारू को बच्चा पलता है, likewise we can wrap the baby on the abdomen and chest of the mother with the cloth. तो कंगारू की तरह जो एक थैली बना के हम, या मदर को बड़ा सा खुला गाउन पहना के रैप कर सकते हैं बेबी को, जिससे कि बेबी वार्म उस पे सरफेस पे रहेगा, मदर से उसको हीट मिलता रहेगा, और टेम्परेचर वो लूज नहीं करेगा, इवेपोरेटिव लॉसेस नहीं होंगे, कंडक्टिव लॉसेस, कन्वेक्टिव लॉसेस नहीं होंगे। साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी जो है वो प्रमोट होती है इसमें। तो कंगारू मदर केयर के बेनिफिट्स की बात की है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, फैमिली मेंबर कैन आल्सो गिव कंगारू मदर केयर। इट इज नॉट लेस देन 1 आवर एट अ टाइम। एक बार जब दे रहे हैं तो 1 घंटे से कम ना हो। यूजफुल, वेरी यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ hypothermia in preterms as well as low birth weight babies. It provides warmth and promote breastfeeding. It also gives protection against infection if mother or only family member is providing it. And emotional bonding मदर के साथ, लैक्टेशन प्रोवाइड करने के लिए, फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए मदर को जो है, जब वो ब्रेस्ट पे लगेगा या स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, तो मदर के हार्मोन सीक्रेट होंगे, और लैक्टेशन भी जो है प्रमोट करता है। It also gives physiological stability to the newborn and reduces apnea. स्टिमुलेशन होता रहता है इसका, मल्टीमोडल स्टिमुलेशन है, मदर की आवाज़ भी है, मदर का टच भी है, एवरीथिंग इज गिवन साइमल्टेनियसली। दैट्स वाई इट प्रिवेंट्स एपनिया। तो एपनिया में जाने से बचाता है बच्चे को। तो कंगारू मदर केयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड विदाउट एनी जो एक्सपेंडिचर, विदाउट एनी खर्चा जो है, वी कैन maintain the temperature of the newborn by kangaroo mother care. Then next thing is breastfeeding. तो initiate breastfeeding, तो 2 चीज़ें बेसिक नीड्स जो न्यूबॉर्न की हैं। अगर बेबी ब्रीथ कर रहा है तो उसके बाद जो 2 या 3 चीज़ें हैं। एक तो उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, क्योंकि सेप्सिस रिलेटेड डेथ्स जो हैं बहुत हाई होती है, और सेप्सिस
की रिस्क तब बढ़ जाती है जब बेबी फैड नहीं किया गया है या बेबी हाइपोथर्मिया में है। तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड न्यूट्रिशनल नीड्स एड्रेस करना, उसको जो है न्यूट्रिशन के साथ साथ और भी बहुत सारा जो है ब्रेस्ट मिल्क चीज़ें देता है, इम्यूनिटी देता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग देना, ये 4 चीज़ों को जो है न्यूबॉर्न रूटीन केयर में इसीलिए रखा गया है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना है और इनिशिएट करनी है विद इन फर्स्ट आवर्स और विद इन 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ। द हेल्थ केयर वर्कर शुड हेल्प मदर टू फीड द बेबी। फर्स्ट फीड जो है यूजली मदर्स इफ अनट्रेन्ड है, फर्स्ट बेबी है, देन हेल्थ वर्कर और नर्सिंग स्टाफ जो भी है उसको जो है हेल्प करना है मदर को। और उसमें आगे हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, लाइक पोजीशन जो है मदर की सही हो, बेबी जो है मदर की तरफ फेस कर रहा हो, वो सारी चीज़ें, अटैचमेंट सही हो उसका जो है, एरियोला एटलीस्ट लोअर हाफ ऑफ द एरियोला फुल जो है अंदर उसने माउथ में लिया, अपर हाफ में स्लाइटली विजिबल हो। अटैचमेंट के कुछ साइंस हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं, चिन अटैच्ड हो, लोअर लिप्स इवर्टेड हो, स्मॉल एरियोला ओनली विजिबल अबव जो है हो, अबव वाला लोअर हाफ का नहीं है विजिबल हो। तो इस तरीके के कुछ अटैचमेंट्स के पॉइंट्स हैं। और इफेक्टिव सकलिंग कर रहा हो जो है वो अच्छे से सक कर पा रहा हो। तो ये चीज़ें जो है बताती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली हो रही है। तो इन चीज़ों को इंश्योर करना है जब भी मदर फीड करवा रही है, तो हेल्थ वर्कर को उसको इंश्योर करना है, उसको हेल्प करना है इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। देन स्किन एंड आई केयर की बात है, वो सेप्सिस प्रिवेंट करने के लिए बेसिकल स्किन केयर है। तो बेबीज आर नॉट वॉथ रूटीनली इन हॉस्पिटल, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मॉडर्न साइंस वॉथ के खिलाफ है, बिकॉज देर आर वेरियस कॉम्प्लिकेशन लाइक हाइपोथर्मिया एज वेल एज इन्फेक्शन। यूजली जो है इंडिया में तो एज सच गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर ओवर बर्डनड, वहाँ पे बहुत सारी डिलीवरीज हो रही हैं, तो वहाँ पे वॉश कराना क्रॉस इन्फेक्शन को प्रमोट करा सकता है। दूसरा, हाइपोथर्मिया के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अगर हम ओपन में जो है वॉश करा रहे हैं। तो यूजली हॉस्पिटल स्टे के दौरान वॉश कराना जरूरी नहीं है। वी में स्पॉन्ज द बेबी विद ल्यूक वार्म वाटर, हल्की फुल्की स्पॉन्जिंग से क्लीन करें उसका। रूटीन केयर ऑफ आइज आर नॉट रिक्वायर्ड, बट वी कैन टेक अ स्वैब सोक्ड इन एनएस एंड फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस जो हम उसको बाइप कर सकते हैं आई में। एंड इफ डिस्चार्ज इज देयर इन आई, we can send that discharge for culture sensitivity and start some gentamicin or erythromycin eye drops। empirical जो है वो शुरू हम कर सकते हैं। then after culture sensitivity हम जो है उसको एंटीबायोटिक चेंज भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज रूटीन केयर ऑफ आइज आर नॉट नाउ एडवाइजेबल। स्किन केयर में ध्यान क्या रखना है कि अम्बलाइकल जो हमने सिर्फ इमीडिएट केयर की बात करी थी, लेटर ऑन वी शुड वॉच, जैसे एग्जामिनेशन में भी हमने बात करेंगे हम कि 24 आवर्स में जब हम जो एग्जामिनेशन करेंगे तो अम्बलाइकस को भी देखना है कि अम्बलाइकस में इन्फ्लामेशन या रेडनेस वगैरह के साइंस तो नहीं है, पस तो नहीं आ रहा है अम्बलाइकल स्टम्प से। तो वो चीज़ें भी देखनी है और उसकी केयर भी करनी है। तो एसेप्टिक केयर जो हम लाइकस की करते हैं, और इफ रिक्वायर्ड देन वी कैन डस्ट द antibacterial powders over umbilicus, but we do not provide bed bandage over umbilical stump। जो हमने umbilical cord काटी है उस पर बेड बैंडेज हम यूजली नहीं करते हैं। वी कीप इट ड्राई बाय pouring some antibacterial dusting powders if required, not routinely। देन लास्ट इज काउंसलिंग एंड डिस्चार्ज। तो काउंसलिंग, मदर को काउंसल करना, तभी जो डिस्चार्ज हम कर सकते हैं इफ मदर इज एबल टू कीप द बेबी वार्म, शी इज एबल टू ब्रेस्ट फीड फ्रिक्वेंटली एज वेल एज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की उनको सिखाना है, बात करनी है कि she have to give exclusive breastfeeding to her baby। she should not give some top feed to the baby। top feed की आदत नहीं डालनी, ऊपर से गाय का दूध दिया, कोई जो है बेबी फूड या बेबी मिल्क जो आते हैं मार्केट में वो नहीं देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ जो है होनी चाहिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कंसल्ट
डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ या जो भी हेल्प है आपके पास उनको कंसल्ट करें, बट विदाउट कंसल्टेशन आप टॉप फीड शुरू ना करें। ये एडवाइस जो है काउंसिल मदर को करना है, ब्रेस्ट फीडिंग के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उसको बताने हैं। एंड वेन एवर मदर इज गोइंग टू टेक द चाइल्ड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और कुछ भी कर रही है मदर उसको ले रही है, तो she should wash hands clean with soap and water, and usually after toilet or cleaning the bottom of the baby she should practice hand hygiene। और उसको जो है डेंजर साइन के बारे में भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, और अगर डेंजर साइन है तो कहाँ से जो है उसको हेल्प मिल सकती है, कहाँ उसको रिपोर्ट करना है, कैसे केयर सीकिंग हेल्थ केयर जो है फैसिलिटीज़ कहाँ रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें जो उसको काउंसलिंग करनी है। तभी फिर हम जो आगे उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज से पहले जो चीज़ें करनी है वो है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन डिस्चार्ज से पहले होगा। फर्स्ट 24 आवर्स में भी कर सकते हैं, बट यूजली बिफोर डिस्चार्ज हमको ये 3 वैक्सीन लगा के ही भेजना है, BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस बी। देन डिस्चार्ज कब करना है? यूजली डिस्चार्ज की पॉलिसी होती है व्हेन मदर इज एबल टू फीड द बेबी वेल और बेबी इज एबल टू फीड वेल। यूजली इसलिए प्रीटर्म्स को, अगर प्रीटर्म्स हेल्दी भी है, प्रीटर्म्स एक्टिव है, हेल्दी है, बट फीड नहीं कर पाते हैं यूजली प्रीटर्म्स, तो उनको जो है हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। व्हेन एवर बेबी इज एबल टू फीड properly on the breast and mother is trained enough to feed her baby breast milk properly, then and only then the baby should be discharged। And second condition is baby is gaining weight properly। usually क्या होता है, फर्स्ट 3-4 डेज में बेबी जो है वेट लूज करता है फर्स्ट 2-3 डेज में, देन इट स्टार्ट गेनिंग वेट। तो वेट जो है गेन शुरू हो गया और बेबी इज एबल टू मेंटेन टेम्परेचर एज वेल एज baby is feeding properly, then we can discharge। और इंडिया में यूजली ओवरबर्डन, तो यूजली अगर टर्म बेबी है, LBW नहीं है, LBW भी 1800 ग्राम से नीचे वाले बच्चों को जो है स्पेशल केयर नर्सरी में रखा जाता है, नहीं तो 1800 ग्राम से बड़े बच्चों को होम केयर के लिए भेज दिया जाता है। तो उन कंडीशंस में वी शुड एडवाइज देम टू फॉलो आफ्टर 3 और डे 7, थर्ड डे अपीयरेंस ऑफ जॉन्डिस के लिए जो हम, और सेप्सिस के कोई साइन तो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए 7th डे जो है बुलाया जाता है। आफ्टर दैट वीकली हम फर्स्ट मंथ में बुलाएंगे, खासकर LBW बेबीज में, कि वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन फॉर द असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और साइन ऑफ इलनेस के लिए हम जो है रूटीन फॉलोअप करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में वैक्सीनेशन भी होगा, तो मंथली जो उनको बुलाना है। एंड आफ्टर दैट क्वार्टरली हम जो फर्स्ट ईयर में बेबी को बुला के उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फीडिंग में कोई प्रॉब्लम है, फीडिंग एडवाइस के लिए और काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स को भी बुलाना है, बेबी को भी बुलाना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रूटीन केयर। बहुत सारी चीज़ें जो है हमने मिस करी हैं इसमें, जैसे क्लोथिंग की बात नहीं करी कि सॉफ्ट क्लोथ्स जो है बेबी को पहनाने हैं, सिंथेटिक ना हो, बटन वटन ना हो, बेबी के बैक से ओपन हो, फ्रंट से ना हो, सुपाइन पोजीशन में ही लेटाना है। देयर आर सो मैनी थिंग्स कि कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट बेबी को कैसे देना है। तो चाइल्ड केयर जो है छोटा सा चीज़ नहीं है, एक छोटे से पॉइंट पे जो हम 10-10 लेक्चर्स दे सकते हैं, बट फॉर मेकिंग इट कंसाइज और इंटरेस्टिंग, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने जो है लिए हैं। आगे हम इसी को सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए जो है एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, जेस्टेशनल एज असेसमेंट और टर्म प्री टर्म डिफरेंशिएशन, देन मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म या प्री टर्म हैंडीकैप्स, इनकी बात जो है करेंगे। देन फीडिंग पे जाएंगे। इस तरीके से जो आगे हो सकता है तब तक आपकी रूटीन क्लासेस जो हैं कॉलेज में शुरू हो जाएं। तो तब तक धन्यवाद। फीडबैक कोई नहीं देता, कोई सुन भी नहीं रहा है, बहुत कम लोग जो है नए क्लास में इंटरेस्टेड हैं। तो रूटीन टेस्ट लिए जाएंगे, रूटीनली जो है आप लोगों की असेसमेंट की जाएगी, तभी आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे।
तो रूटीनली जो है इसको हर एक लेक्चर को सुनो और क्वेरीज को सेंड करो, फीडबैक दो, है ना। थैंक यू।